السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج ہم پڑھائی کرنے جا رہے ہیں وضو کس طرح سے تولید کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سبق کا نام رہے گا، وضو کس طرح سے تولید کرتے ہیں۔ تو دیکھو، وضو کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر جاندار۔ کوئی بھی ایک جاندار آخر کار یہ تولید کیوں کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے، اس کو ہم یہاں پر پڑھائی کرنا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ تولید کا جو ایک نظام ہے وہ کسی جاندار کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اب میرے لیے، میں ایک جاندار ہوں، میرے لیے سمجھو استخراجی نظام ضروری ہے، عمل تنفس کا نظام ضروری ہے، تغذیہ اشیاء کا میں لینا، غذا کا لینا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ایسا کسی جاندار کے لیے جو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو عمل تنفس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے کسی جاندار کو تولید کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر تولید ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو، یہاں پر تولید اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ اپنی نسل کو برقرار رکھیں اور خاص کر اس کے اندر کچھ تغیرات آ جائیں، اس کے اندر کچھ ویریبلز آ جائیں، چینجز آ جائیں۔ اگر یہ تولید نہ کرتا تو اس کی نسل وہاں پر ختم ہو جاتی۔ اگر تولید ہونے کے باوجود بھی اگر اس کے اندر کچھ تغیرات نہیں ہیں تو وہ بھی نسل ختم ہو جاتی۔ کیوں تغیرات بھی ضروری ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور آخر کار یہ تولید کیا چیز ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھو۔ تم نے پڑھتے آئے ہیں، 9ویں جماعت میں پڑھے ہیں، 8ویں جماعت میں پڑھے ہیں، تولید سے مراد کیا ہے کہ کوئی جاندار اپنے ہی نسل کو برقرار رکھنے والا ایک عمل، اسی کو ہم تولید کہتے ہیں۔ کون سا بھی جاندار، ہر ایک جاندار تولید کرتا ہے، ہر ایک جاندار اپنی نسل کو برقرار رکھتا ہے، تو چلے جانے سے پہلے پیچھے نسل کو تیار کر کے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس عمل کو ہم کہتے ہیں تولید۔ تو یہ تولید آخر کار تولید کے دوران ہو بہو، یعنی جیسا کہ ویسا ایگزیکٹ کاپی ہوتی یا نہیں ہوتی، یہ سوال ہمارے دماغ میں بھی پھیل سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جاندار ہے تو اس جاندار کے ذریعے جو نسل نکلتی ہے وہ نسل کیا اس جاندار کے پیرنٹس کے سیم ہوتی ہے، ایگزیکٹ جیسے کہ ویسے ہی نقل ہوتی ہے؟ تو یہ سوال کا جواب ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ جسمانی لحاظ سے تو سیم ہے، مگر اندرونی جینز کے طور پر وہ مختلف ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلی آتی ہی ہے، جس کو ہی ہم کیا کہتے ہیں، ویریبلز کہتے ہیں۔ ویریبلز یعنی اس کے اندر کچھ تبدیلی آ جانا، جنس کا تغیر کہتے ہیں، اس کو اردو کے اندر تغیر کہتے ہیں۔ تغیر کا مطلب ہوتا ہے ویریبل، چینجز آتا ہے۔ کیا چینجز آتے ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے کوئی جاندار پیدا ہونے کے لیے وہاں پر کیا ہوتا ہے، بولو، کلوی تقسیم ہونے لگتا ہے۔ کلوی تقسیم تو 2 قسم کے ہیں، مائٹوسس، میوسس۔ یہ مزید معلومات تم نے اگلی جماعت میں حاصل کرو گے، لیکن اب ہم یہاں پر سیکھنا ہے صرف کلوی تو تقسیم ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ اس کے تعلق سے آ چکا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو مرکز ہے اس کا، یہ تقسیم ہوتا ہے۔ اب مرکز کے اندر کیا کروموسوم، یہاں پر جو ہے مرکز کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو تقسیم میں مدد کرتی ہے، وہاں پر جو ہے کروموسومز ہیں، کروموسومز جو کرومیٹین 8 جماعت میں تم نے دیکھے ہیں، 8ویں میں۔ تو یہاں پر یہ جو کرومیٹین نیٹ ورک ٹائپ رہتا تھا، یہ کیا ہوتا ہے، کنڈینسڈ ہو کر کروموسوم میں تبدیل ہوتا تھا۔ اب یہ کروموسوم کے اندر ڈی این اے ہوتے تھے، تو یہ ڈی این اے ہی یہاں پر جین کی مٹیریل ہے، جینی مادہ ہے، یہ جینی مادہ۔ تو یہ کیا کرتا ہے، اگلی نسل میں پیرنٹس سے تمام خاصیتیں پہنچاتا ہے۔ کوئی ایک جاندار پیدا ہو رہا، اس کی تمام خاصیتیں اس اگلی نسل میں آنے کا جو راستہ ہے، آنے کی جو وجہ ہے، وہ ہے ڈی این اے۔ سمجھ میں؟ تو یہ ڈی این اے کی وجہ سے تمام خاصیتیں اگلی نسل میں، اب ہماری جو نسل اگلی آنے والی ہے، اس نسل کے اندر تمام خاصیتیں، ہماری خاصیتیں جو پھیلتے ہیں وہ کس کے ذریعے، یہ ڈی این اے کے ذریعے۔ تو بہرحال یہاں پر ڈی این اے بہت ہی اہم ایک نیوکلک یعنی مرکزی جینی مادہ ہے۔ یعنی ڈی این اے کا مطلب کیا ہے، ڈی آکسی ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ تو اس کو ہم کہیں گے ڈی آکسی رائبو
न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है बहुत ही अहम है अगली नस्ल में कुछ खासियतें मुंतकिल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है अगली नस्ल में चंद खासियतों मुंतकिल तो कर दिया, ये तौलीद होने के दौरान बहुत सारे वहाँ पर कीमियाई तामुलात होने लगते हैं। कीमियाई तामुलात जिसके अंदर प्रोटीन है वो प्रोटीन तब्दील हो जाता है किसी और कीमिया में, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, उसके बाद वो तकसीम होते हैं, ये खुलिया तकसीम होकर फिर दो नए खुलिया देता है। तो इस तरह से खुली तकसीम होने लगती है और नस्ल बढ़ने लगती है। इसके दौरान क्या यहाँ से जो इसके कैरेक्टर हैं एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर इसमें आते हैं क्या, ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं आ सकते। तो यहाँ पर डीएनए यहाँ से ट्रांसफर होकर इसमें से कुछ जाता है इसमें कुछ जाता है, ये डीएनए इसके अंदर जाने के दौरान कुछ तब्दीलियां वहां पर लाता है, और लाना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है तबई के अंदर मैं बताता हूं आपको। ये जो इसके अंदर तब्दीली आती है एग्जैक्टली ये जो खासियत रखता है वो खासियतें इनके अंदर एक चंद खासियतें मिस हो सकती है, एक चंद खासियतें इसमें नहीं आ सकते। ऐसा ये क्यों होता है, देखो ऐसा होना भी जरूरी है, ये कुदरत का निजाम है। देखो ये जो तब्दीली इसके अंदर आई इसको हम कहते हैं तबई कहेंगे। अब ये तबई जो है बहुत ही अहम है, वेरिएबल जो है बहुत ही अहम है। हर कुलवी तकसीम लिखा रहेगा, जानदार के अंदर जब तकसीम होता है यानी जो तौलीद होता है उसके दौरान तबई बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको देखते हैं। देखो सबसे अहम पॉइंट जो यहाँ पर हमारा माहौल के अंदर दर्जे हरारत की तब्दीली होती रहती है, माहौल के अंदर दर्जे हरारत तब्दीली होती है, हवा के अंदर फिजाई के अंदर कुछ तब्दीली आती है, और हमारे रहन सहन के अंदर कुछ तब्दीलियां आने लगते हैं। इस तब्दीली को वो नस्ल एडप्ट कर सके, इसीलिए एडप्ट करें उस तब्दीली यानी उस माहौल की तब्दीली को वो क्या कर सके, वहां पर आराम से उसके साथ वो जम सके, जुड़ सके। मिसाल के तौर पर हम मिसाल देते हैं डायनासोर्स, अब तो फिलहाल नहीं है क्योंकि वो अपना तबैर करना छोड़ दिए थे, उन जानदारों के अंदर तौलीद के दौरान तबैरात नहीं हो रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर क्या हो गया बोला नस्ल खत्म हो गई। यानी जैसा जैसा आगे जो जमाना आते जाता है माहौल के अंदर कुछ तब्दीलियां आने लगते हैं, कुछ नए गैसेस आते हैं और हवा का गैसेस का प्रेशर अलग होने लगता है और दर्ज हरारत अलग होता है माहौल में, ये तमाम चेंजेस होने लगता है जैसे जैसे जमाना गुजरते जाता वैसे वैसे। तो हम पहले कहते थे कि इतना ज्यादा धूप नहीं रहती थी पहले जमाने में, अब इतना ज्यादा धूप आने लगी, पता नहीं अब आइंदा आने वाले जमाने में इससे भी ज्यादा धूप हो सकती है। लेकिन ये जैसे जैसे जमाना बदलता है इस जमाने को ये तमाम जो जानदार है पैदा होने वाली उसको अडप्ट हो सके, उसको वो जुड़ सके, इसीलिए हर जानदार के अंदर क्या होता है बोलो तगैर होता है। अगर तगैर ना होता, वेरिएबल ना होता तो वो जैसे कि वैसे हम जैसे ही हमारी कॉपी निकल आती है, हमारी जनरेशन आ जाता, फिर आगे बना खास्ता कुछ माहौल बदल गया, ज्यादा धूप बढ़ गई तो वो माहौल के अंदर हमारे जो जनरेशन हम जैसा को वहां पर रहना मुश्किल होता है। लेकिन ये तगैर अगर हो गया बोलो तो इसके अंदर कुछ तब्दीलियां, क्या तब्दीलियां आती बोलो माहौल के एतबार से इसके अंदर कुछ है वो माहौल को एडजस्ट होने की सलाहियतें हर जनरेशन के अंदर आगे जाने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तगैर का होना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं वाहिद खुलियों में तौलीदी अमल। हर जानदार दो किस्म के खुलियात रखते हैं, वाहिद खुलवी जानदार, कसीर खुलवी जानदार, ठीक है। तो अब वाहिद खुलवी जानदार के अंदर, वाहिद खुलवी जानदार के अंदर देखो कैसे तौलीद होता है, इसको हम सबसे पहले पढ़ाई करना है। तो ये देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर होता है तौलीद आमतौर पर जो है हर जानदार के अंदर दो किस्म की तौलीद, ठीक है। तौलीद कितने किस्म की होती है, दो किस्म की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक जो है इसके अंदर जिनसी तौलीद जिसको हम सनफी तौलीद भी कहते हैं, सनफी तौलीद, और एक दूसरा जो है गैर जिनसी तौलीद जिसको हमें गैर सनफी तौलीद भी कह सकते हैं, गैर सनफी तौलीद भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर गैर जिनसी तौलीद। ये आमतौर पर जो है वाहिद खुलवी जानदारों के अंदर होने वाला एक तौलीदी निजाम है, ठीक है। अब वाहिद खुलवी जानदार मिसाल लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक खुलिया होता है, ऐसे जानदार तो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि अमीबा है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है, हाइड्रा है, ये जो भी है जानदार ये वाहिद खुलवी हैं। खुदबीन जानदार जो है वो तमाम वाहिद खुलवी कहलाते हैं, ठीक है।
तो ये वाहिद खुलवी के अंदर सबसे पहले होने वाला जो तौलीद है वो है फिशन। फिशन, यस फिशन। तो इसको हम उर्दू में कहेंगे इंशिकाक। क्या कहेंगे? इंशिकाक। देखो अभी इंशिकाक का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब क्या होता है? टूटना। देखो क्या टूटना? कोई खुलिया है, वो खुलिया टूट जाता है, टूट कर दो अलग अलग हिस्सों में बन जाता है। तो पहले टूटने वाले अमल को ही हम कहते हैं इंशिकाक उर्दू में, ठीक है। अब ये इंग्लिश में फिशन कहलाता है। फिर फ्यूजन अलग है। हाँ, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। उर्दू में इसको कहेंगे ना इंशिकाक या इंशिकाक पढ़ो। तो अब ये इंशिकाक का जो टूटने वाला अमल है वो दो किस्म का होता है। टूटने वाला अमल वाहिद खुलवी जानदारों में देखो कौन सा? ये यहाँ पर होता है बाइनरी फिशन, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, और दूसरा आता है यहाँ पर मल्टी फिशन। मल्टी फिशन यानी बाइनरी मतलब होता है दोहरा इंशिकाक, तो हम इसको बोलेंगे दोहरा इंशिकाक। और ये मल्टी का मतलब होता है कसीर है ना, बहुत सारे, कसीर इंशिकाक, ठीक है। ये दो किस्म की तौलीद वाहिद खुलियों के अंदर बहुत ही आम है। किसमें होगी? इंशिकाक यानी टूटने वाला अमल जो है, टूट कर तौलीद होने वाला अमल दो किस्म का टूटता है। वो एक बाइनरी फिशन के तरीके में टूटता है, दूसरा मल्टी फिशन के तरीके में टूटता है। अब आइए हम देखते हैं बाइनरी फिशन के अंदर किस तरह से टूट सकता है। यहाँ पर सिर्फ कोई ये खुलिया अगर टूट रहा है तो टूट कर सिर्फ एक से दो हिस्से बना सकता है इसे। अगर एक खुलिया है टूट गया तो दो हिस्से बन गए, तो दोनों ये हिस्से क्या बन सकते हैं बोलो? फिर नए खुलिया बन सकते हैं, नए जानदार बन सकते हैं टूट कर। तो इसको हम कहेंगे बाइनरी फिशन। अब यहाँ पर आइए मल्टी फिशन यानी कसीर खुलवी के अंदर, कसीर इंशिकाक के अंदर क्या हो सकता है बोलो? यहाँ पर दो से भी ज्यादा यानी कई, 2 से 3 बोलो, 4 बोलो, 5 बोलो, कितने भी बोलो, 2 से ज्यादा हिस्सों में वो जानदार टूटता है, और उस टूटे हुए हर एक हिस्से से हर एक अलग अलग नया जानदार वहां पर तैयार हो जाता है। तो इसको एक मिसाल के जरिए हम देखेंगे। देखो अब यहाँ पर दोहरा इंशिकाक, इसकी मिसाल हम लेंगे अमीबा, ठीक है। अमीबा बहुत सारे अलग अलग शक्ल का होता है, ना इसकी मखसूस कोई शक्ल है, ठीक है। ये अमीबा, अगर ये अमीबा क्या होता है बोलो? अभी मरकज इसके अंदर टूटना शुरू हो जाती है। कब ये अपना अगर खुलवी तकसीम करना चाहा या ये अपना तौलीद करना चाहा तो तब क्या होता बोलो? इसके अंदर का जो मरकज है ये तकसीम होना शुरू हो जाता है। तकसीम होते 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 क्या हो सकता है बोलो? यहाँ पर जो अमीबा है ये शक्ल में आता है, ये मरकज इस तरह से बन सकती है इसकी, ठीक है, इस तरह से बना। फिर आते 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 क्या हो सकता है कि यहाँ से टूट कर ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, इसके अंदर एक मरकज, इसके अंदर एक मरकज। तो बहरहाल इस तरह से यहाँ पर क्या होने वाली है? ये जो जानदार है यहाँ पर उसका मरकज टूट कर ये दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे दोहरा इंशिकाक, बाइनरी फिशन। अब उसी जगह कसीर इंशिकाक का मिसाल हम देखते हैं यहाँ पर। इसके अंदर ये जो अमीबा हो गया, इसके अंदर और एक मिसाल आती है, और एक मिसाल बता के बाद में कसीर इंशिकाक को कहेंगे। और एक मिसाल इसके अंदर लीजिए प्लानेरिया, प्लानेरिया इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर दूसरी मिसाल लिशमेनिया जिसको हम कहते हैं, वो देखो इसके अंदर एक विप होता है, जानदार इस तरह से होता है, मार्कस होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर इस तरह से विप होता है। विप यानी एक फ्लैजिला की शक्ल एक साफ्ट होती है, रेशेनुमा, ठीक है। ये रेशेनुमा जो साफ्ट है ये बराबर इस तरह से नहीं टूट सकता, इसीलिए ये कैसा बराबर इस तरह से दो हिस्सों में तकसीम होता है। फिर ये जब इस आगे जाते जाते क्या मतलब है, ये अलग बना, फिर इसका आधा हिस्सा इधर, फिर ये अलग बना, ठीक है। इसके अंदर भी मतलब इसके अंदर ये बराबर दो हिस्सों में टूटकर फिर दो नए लिशमेनिया, ये भी खुली जानदार है, तो नए दो लिशमेनिया बनाता है।
दोहरा इंशिकाक। अब मिसालें याद रखो, दोहरा इंशिकाक के अंदर आने वाले दो किस्म के जानदार, एक जो है इससे भी ज्यादा होंगे लेकिन हमारे सिलेबस को दो जानदार यहाँ पर रखे गए हैं, एक अमीबा है, दूसरा लिश्मेनिया है। यहाँ पर इसको उर्दू में इस तरह से लिश्मानिया ही लिखे गए हैं, लिश्मानिया, और इसका नाम है अमीबा, अमीबा। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ जो बाइनरी फिशन है, दोहरा इंशिकाक है, इसके दो जो मिसालें हैं अमीबा और लिश्मानिया, तो बराबर दो हिस्सों में टूट कर तकसीम होने वाला अमल फिशन, कौन सा फिशन? बाइनरी फिशन। इंशिकाक कौन सा इंशिकाक? दोहरा इंशिकाक कहलाता है। अब आइए देखते हैं कसीर इंशिकाक। कसीर इंशिकाक का मतलब होता है, यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये मलेरिया को आमतौर पर फैलाने वाला, मलेरिया का एक ये तुफैली जानदार है। ठीक है, पैरासाइटिक इन नेचर, इट इज पैरासाइटिक इन नेचर। तो अब देखो ये प्लाज्मोडियम जो है ये किस तरह से तकसीम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर बता दूं, ये क्या है? प्लाज्मोडियम का खुलिया इस तरह से। ठीक है, प्लाज्मोडियम का खुलिया है। तो जब ये तकसीम होने लगता है तो उस वक्त में इसके ऊपर एक पतली परत बना लेता है, एक परत बना लेता है इस तरह से। ठीक है, परत बनाकर उसके अंदर ये जो खुलिया है तकसीम होता है, बहुत सारे खुलिया इस तरह से तकसीम होते 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 क्या बनाता है? बहुत सारे मरकज़ें इसके अंदर बनाता है, बनाकर आखिरकार ये जो मुकम्मल इसकी जो उसके अंदर दायरा, जो उसके अंदर जगह मुकम्मल होगी तकसीम होते होते होते, तो उस वक्त में कहीं पर से एक जगह से यहाँ पर इस तरह से कट हो जाती है। कट होने के बाद क्या होता है? ये हर एक खुलिया इस तरह से बाहर निकलकर ये हर एक खुलिया क्या होता है? फिर नए खुलिया में तब्दील हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जो मरकज़ें बने हैं, यहाँ पर बहुत सारे टूटकर ये जो इसके ऊपर फिर एक अलग अलग परत बना लेता है, हर एक नुक्ता इसके अंदर हर एक मरकज़ बनकर फाइनली क्या है? बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर फिर ऐसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम के जानदार बनकर निकलते हैं। तो ये भी किसमें आएगा बोलो? इंशिकाक। कौन सा? कसीर। क्यों? बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर बाहर निकलकर क्या हो रहे हैं? फिर बहुत सारे प्लाज्मोडियम यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंशिकाक के ताल्लुक से, फिशन के ताल्लुक से गैर सनफी तौलीद। देखो गैर सनफी तौलीद यानी यहाँ पर कोई नर और मादा का इत्याद होना जरूरी नहीं था, उसी को हम गैर सनफी तौलीद बोलते हैं। जब नर और मादा दोनों इत्याद होना जरूरी है, दोनों के सेक्सुअल गैमेट्स मिलना जरूरी है, उसको हम सनफी तौलीद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न ही इसको मेल और फीमेल की जरूरत थी, ये अपने आप के अंदर टूट कर फिर नए जनरेशन को पैदा कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोले? गैर सनफी तौलीद या गैर जिनसी तौलीद। तो गैर जिनसी तौलीद के अंदर एक जो हमने देखे अब तक वो फिशन यानी इंशिकाक। अब इसके बाद आने वाला दूसरा कौन सा है? वो है पारगी। पारगी, हम उर्दू में पारगी कहते हैं, इसको इंग्लिश के अंदर फ्रैगमेंटेशन, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो देखो उर्दू में पारगी बोलेंगे और इंग्लिश में इसको फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे। तो हमने देखना है अब पारगी का काम फ्रैगमेंटेशन, यानी यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा ये जो कहाँ पर होता है स्पाइरोगेरा? पानी के तह में जो सब्ज रंग जो जमा होती है स्लाइड के माध्यम वहां पर ये जो वाक़या होने वाला स्पाइरोगेरा। ठीक है, अब ये स्पाइरोगेरा आमतौर पर इसकी शक्ल तुमने देख रखा है जिस तरह से, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर दरमियान खुलियात होते हैं। तो देखो फिर इसके अंदर तो इस तरह से तिरछी लगी कुछ इस तरह से कुछ अलग अलग इसकी शक्ल को देखे हैं। ये स्पाइरोगेरा यहाँ पर क्या हो सकता है? ये भी ये अपने एक वक्त के तौर पर यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो सकता है, टुकड़े टुकड़े बनकर ये हर टुकड़ा फिर नया एक जानदार बनकर, नया जानदार बनकर निकलता है। ये भी इसी तरह से, ये भी इसी तरह से। ये इसके छोटे 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 टुकड़े जो हैं ये टूटने के बाद किसी वजह से टूट सकते हैं। समझो इसको अगर कोई जानदार खा लेगा हिस्सा, या खाने के दौरान फिर ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया, या कोई वजह से ये टूट सकते हैं। पानी के अंदर कोई हम लकड़ी घुमा रहे हैं, कोई वहां पर काम कर रहे हैं, तो उस वक्त में भी ये टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग बन गए, तो उस वक्त में फिर हर एक टुकड़ा जो है, हर एक टुकड़ा इसका क्या करता है बोलो? फिर एक नए खुलिये के अंदर
तब्दील होता है, इसी को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का मतलब है टुकड़ा। जैसे समझो एक स्पैरो वगैरह है, इसका टुकड़ा चले गया, टूट गया, इसका इसका इस तरह से बहुत सारे टुकड़े बन गए, तो हर एक टुकड़ा जो है इसके अंदर क्या होता है, फिर नया स्पैरो वगैरह बनाता है, नया जानदार बनाता है। तो ये कहलाता है पारगी का अमल, फ्रैगमेंटेशन का अमल। तो अब थोड़ा सा हमें प्रीवियस का जो पढ़ाई करें उसको अगर गौर करेंगे तो दोनों सिमिलर लग रहा है। किसमें? मल्टी फिशन के अंदर और फ्रैगमेंटेशन के अंदर, दोनों के अंदर फर्क क्या? दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो मल्टी फिशन, इसके अंदर मिसाल दिए हैं कौन सी? लिशमैनिया, राइट, और प्लाज्मोडियम। तो ये जो है बहुत ही ये सादा तरीके का तौलीद है, ये थोड़ा सा पेचीदा है। क्यों यहाँ पर पेचीदा इसको कहा गया? कि ये सिर्फ तकसीम नहीं होते, बल्कि ये जानदार फिर बहुत सारे खुलियात को जमा करते हुए अपना एक निज़ाम तंजीम को लाते हैं, एक निज़ाम बना लेते हैं। जैसा हम बोलते हैं बहुत सारे खुलियात मिलकर क्या बनता है? नसीब बनती है। बहुत सारे नसीब मिलकर क्या बनता है? एक ऑर्गन बनता है, राइट, उज़िया बनता है। अब ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक जिस्म बनता है। इस तरह से हम बोलते हैं इसके अंदर एक तंजीम होती है इन जानदारों के अंदर, लेकिन इस पारगी के अमल में वो तंजीम बिल्कुल नहीं होती। इसलिए बहुत ही सादे तरीके में जैसे भी टूटता है फिर ये नए खुलियात बनाते जाता है। तो इसको हम कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। तो इसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये भी टूटने वाला अमल है, ये भी टूटने ही वाला अमल है, ठीक है। मगर ये सादा, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, सादा तरीके में ये टूटता है, बहुत ही सिंपल, जैसे टूटा फिर नया बना। मगर ये इस तरह से नहीं, उसको एक मखसूस वक्त है, उसका एक दौर है, तो उसके तहत वो अपना तंजीम को बनाते हुए जाता है। तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। अब इसके बाद आने वाला दूसरा और एक किस्म का बाज़ पैदाइश की तौलीद। बाज़ पैदाइश की तौलीद का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई जानदार को हम काट दिया जाता है, तो उसके बाद कितने हिस्सों में हम काटते हैं, वो हर एक हिस्सा उसका नए खुलियात में, नए जानदार में फिर वजूद में आता है। तो इसको हम कहते हैं बाज़ पैदाइश। बेहतरीन यहाँ पर एक मिसाल हो सकती है एरिया बाज़ पैदाइश में भी हो सकता है, क्योंकि एक प्लानेरिया कई हिस्सों में तकसीम होता हुआ हमने देखे थे, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी हम एक्स्ट्रा मिसाल लेते हैं, एक चंद नबातात या गुलाब का पौधा लीजिए, गुलाब का, उसका एक हिस्सा इस तरह से हम काट दिए, कितने हिस्सों में हम कट करते हैं और फिर इसको मिट्टी के अंदर डाल दिए, दफना दिए, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन और पानी सप्लाई करते हुए, तो फिर एक नया पौधा बन के निकलेगा। ठीक इसी तरह अगर गन्ना है, इसको भी बहुत सारे हिस्सों में तोड़कर फिर इसको जमीन के अंदर दफना दो, फिर नए पौधे वहां पर उगेंगे। तो बहरहाल इसके क्या है, बहुत सारे हिस्सों में हम काट रहे हैं, काटने के बाद इसको अगर हम जमीन के अंदर फिर उगाएंगे तो फिर नए पौधे बनकर वो निकलेंगे। तो ये क्या हो रहा है, बोलो, बाज़ पैदाइश। इसका मतलब दोबारा रीजनरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, दोबारा पैदाइश। इस हिस्से को हम काट दिए, फिर वो जमीन में डाले, फिर नए बने, उसके जरिए जो फिर फसल आती है उसको हम फिर काट देंगे, फिर जमीन के अंदर दसा देंगे, फिर नए पौधे होते रहेंगे। तो ये हो गया बाज़ पैदाइशी तौलीदी तरीका। ये भी क्या है, यहाँ पर गैर हरफी है। इस गन्ने का पौधा अगर है, समझो इसके अंदर कोई नर मादा गन्ने का पौधा तो नहीं लेते, एक ही पौधा है जिसको हम काटते हैं और वो कई हिस्सों में टुकड़े करते हुए जमीन में दफनाने के बाद फिर वो नए पौधे होते हैं। तो इसी अमल को हम कहते हैं बाज़ पैदाइश। अगली जो तौलीद है गैर हरफी तौलीद, वो है कलियाना। कौन से? कलियाना। इसको हम बडिंग कहते हैं। इसके अंदर लीजिए मिसाल हाइड्रा। इसके अंदर लीजिए मिसाल हाइड्रा। यहाँ पर क्या होता है, बोलो, हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा किस तरह से जानदार, इस तरह से है, राइट, हाँ, इस तरह से कुछ, ये जो बहुत सारे इसके ब्रांचेस निकले होते हैं। तो इसके अंदर कुछ ये तौलीद करना अगर चाहा तो यहाँ से कुछ कली निकलती है इस तरह से, ये कली बढ़ती है, तो फिर यहाँ पर भी इसके कुछ ब्रांचेस इस तरह से निकलते हैं। तो ये निकलने के बाद ये क्या होता है, इसको ये वजन हो जाता है, वजन होकर आखिरकार यहाँ से टूटता है, टूट कर ये अलग हो जाता है, फिर ये नया जानदार बनकर ग्रोथ हासिल कर लेता है, यानी
फिर इसके जरिए बड यानी कली निकलती है, फिर वो उस मादा फलिया के जरिए अलग होता है, फिर नए फलिया बनते जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ये कली के तहत बनने वाला जो जनरेशन है, बनने वाली जो तौलीद है, इसी को हम कहें कलियाना। कलियाना इंग्लिश में इसको हम बडिंग कहते हैं। इसके अंदर बेहतरीन मिसाल है आपको हाइड्रा। अब इसके बाद आने वाला जो गैर सनकी तौलीद है वो है कलियाना के बाद आने वाला गैर सनकी तौलीद है वो नबाताती तौलीद। नबाताती तौलीद, नबाताती अफजाइश, इसको हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो इसके अंदर मिसाल हम लेते हैं ब्रायोफिलम की एक मिसाल। ब्रायोफिलम, देखो ब्रायोफिलम मैंने क्या, एक पत्ता है यहाँ पर। इस किस्म की नबाताती तौलीद का मतलब बराह रास्त नबातात के टुकड़ों से ही होना। इसके अंदर हम मिसाल ले सकते हैं, इसकी भी शुगर केन की ले सकते हैं और गुलाब की ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर ले सकते हैं इसके अंदर मिसाल कौन सी, ग्राफ्टिंग। इसके अंदर देखो सॉरी नबाताती अफजाइश, नबाताती अफजाइश के अंदर और हम मिसाल लेते हैं ब्रायोफिलम की। इसके साथ साथ और मिसाल हम लेते हैं ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। इस नबाताती अफजाइश के अंदर, नबाताती अफजाइश के अंदर और दो किस्म के तौलीद हो सकती है। जैसा फिशन के अंदर दो किस्म के थे, बाइनरी और मल्टी, ऐसे ही नबाताती अफजाइश के फिर दो हो सकते हैं। एक जो इसके अंदर है वो है ग्राफ्टिंग, इंग्लिश में याद रखो ग्राफ्टिंग। दूसरा है लेयरिंग, लेयरिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या फर्क है, सिंपल जुमले में बता देता हूं। देखो ग्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी एक पौधे के टुकड़े को छांट लेना, छांट कर फिर दूसरे पौधे के साथ उसको जोड़ देना, वो कहलाता है ग्राफ्टिंग। ब्रायोफिलम को बाद में लिखिए, देखो यहाँ पर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, ये किसी पौधे का एक टुकड़ा है, समझो अब ये आम के दरख्त का टुकड़ा है। आमतौर पर वहां पर यह अमल होता है, आम के दरख्तों के साथ किया जाता है। ये इस पौधे का एक टुकड़ा लेकर इसको कुछ छांट लेते हैं, बारीक से छांट लेना, छांट कर फिर दूसरे वैरायटी ऑफ दी मैंगो ट्रीज, दूसरे वैरायटी का मैंगो ट्रीज, यानी इस पौधे के अंदर जो खासियत नहीं है, जो दूसरे पौधे के अंदर खासियत है, उसकी खासियत इसमें लाने के लिए अमल किया जाता है, ठीक है। यानी ये जो दरख्त है, ये जो दरख्त है इस तरह से एक, ये ज्यादा मीठे आम नहीं देता। ये जो ऑरेंज दरख्त यहाँ पर है बहुत ज्यादा मीठे आम देता है, लेकिन अब इसकी खासियत इसके अंदर तब्दील करना है, तो उस वक्त में हमें ग्राफ्टिंग का अमल करते हैं। तो क्या करते हैं, इसकी एक टहनी लेकर इसको बारीक से छांट लेते हैं, छांट कर इस किसी की एक टहनी के साथ ये टहनी लाकर यहाँ पर जोड़ देते हैं इस तरह से। तब देखो ये इसकी है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लाकर ये टहनी लाकर इसके साथ जोड़कर इसको भांगते हैं, इस तरह से भांगते हैं। यहाँ पर कुछ मिट्टी का हिस्सा हो सकता है ताकि ये ग्रोथ हो सके। तो बहरहाल यहाँ पर भांगने के बाद इस टुकड़े को अलग करके फिर एक नए हिस्से में हम क्या कर सकते हैं, बोलो उगा सकते हैं। इसका एक टुकड़ा लीजिए, इसका एक टुकड़ा लीजिए, दोनों का एक टुकड़ा लेकर इसको दोनों को आपस में इस तरह से ओवरलैप करके यहाँ पर भांगने का, ठीक है। इस तरह से भांग कर इसको यहाँ पर कुछ मट्टी का भी बैग भरना पड़ेगा, उसको मट्टी भी देना पड़ेगा क्योंकि उगने के लिए उसको मौका मिल सके। इसके बाद इसके अंदर जड़ आना शुरू हो जाती है। उस पौधे को फिर एक नर्सरी के अंदर, प्राइमरी स्टेज के अंदर बढ़ाते फिर एक कहीं पर उसको पौधे को लगा सकते हैं, जिसके अंदर ये दोनों पौधों की खासियत आ सकती है। इसे हाइब्रिडाइजेशन प्लांट भी हम बोल सकते हैं, है ना। दोनों की खासियतें इसके अंदर मुंतकिल हो सकती हैं। तो ये हो गया ग्राफ्टिंग का अमल। अब आता है लेयरिंग का अमल। लेयरिंग के अमल के अंदर क्या होता है, लेयर यानी जमीन के अंदर परतें बनाना, उसको हम कहते हैं लेयरिंग। यानी जमीन के अंदर उगने वाले पौधों के साथ ये अमल किया जाता है। ये तौलीद वहां पर हो सकती है, जैसा कि मिसाल हम यहाँ पर लेते हैं स्वीट पोटैटो, रतालू, ठीक है। उसके अंदर देखो अब रतालू के अंदर ये जड़ के अंदर होने वाला निजाम, रतालू के अंदर बारीक बाल होते हैं, जैसा गाजर के अंदर भी होते हैं। तो ये जो बाल हैं रूट कहलाते हैं, रूट यानी जड़
लीजिए मिसाल यहाँ पर आलू लीजिए, इसके अंदर फिर ग्राफ्टिंग आलू के अंदर इस पौधे के अंदर भी किया जाता है। और देखिए यहाँ पर ग्राफ्टिंग के अंदर हम दूसरा और मिसाल लीजिए, ग्राफ्टिंग को बोल सकते हैं अंगूर के दरख्त में अमल किया जाता है, गन्ने के पौधों के अंदर, गुलाब की कंटियों के अंदर, ये सब हमारा ग्राफ्टिंग किया जाता है। उसको छाट कर दूसरे पौधों के साथ जोड़कर इसके अंदर कुछ सलाहियतें एक दूसरे के अंदर तब्दील करने की खातिर। तो अब यहाँ पर देखिए लेयरिंग, लेयरिंग यानी जमीन की तरफ से डायरेक्टली जमीन के अंदर उगने वाला एक बनाने वाला एक लेयरिंग की बेहतरीन मिसाल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम इस तरह से एक पौधा है, सॉरी पत्ता है। अब ये पत्ता जब जमीन के ऊपर गिर जाता है मिट्टी के अंदर, तो वहीं से इसके हर कोने से क्या हो सकता है, फिर एक नया पौधा होना शुरू हो जाता है। इस तरह से इसके अंदर कलियां निकलते हैं, इसके जरिए फिर एक नया पौधा होता है। ये खास तौर पर ब्रायोफिलम के पौधे के अंदर होता है। इसको हम कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग यानी जमीन के अंदर जब पत्ता ऊपर से गिर गया तो जमीन के अंदर ही फिर एक लेयर बनाते हुए यहाँ से भी बहुत सारे दरख्त बनाता है। इसको भी हम कह सकते हैं नबाताती अफजाइश, नबातात के कुछ टुकड़ों से हिस्सों से होने वाला अमल। तो ये भी एक नबातात का हिस्सा है। तो आमतौर पर नबाताती अफजाइश कहाँ से होती है, मतलब ये होती है स्टेम से, रूट से, लीफ से। ये तीन बातें याद रखो। एक पौधा है, उसके अंदर पत्तियां हैं, तना है, जड़ है, ये तीनों जगह से भी वो पैदा हो सकता है। फिर नए पौधे वहां पर पैदा हो सकते हैं, इसी में नबाताती अफजाइश होती है। जैसा कि गुलाब की कंटी है, तने के जरिए फिर नया पौधा होता है, उसे नबाताती अफजाइश बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रायोफिलम के अंदर पत्ते के जरिए पत्ता टूट कर गिर गया, वेस्ट है, मगर उसके जरिए फिर एक नए पौधे बनेंगे। ठीक है, ये पत्तियों के अंदर। अब जड़ के अंदर अगर हम देखना है तो यहाँ पर हम जड़ के अंदर अगर देखना है तो यहाँ पर लेंगे हमें स्वीट पोटैटो, आलू, या जिसको हम रतालू कहते हैं, रतालू भी लीजिए। तो ये रतालू जो है ये जड़ का तौलीद कहलाता है, जड़ का तौलीद, क्योंकि उसके अंदर बारीक रेशे होते हैं। गाजर, ये भी जो है यहाँ पर रतालू, सॉरी गाजर भी जो है यहाँ पर एक नबाताती अफजाइश कहलाता है। तो इस तरह से स्टेम, रूट, लीफ, इन तमाम के जरिए होने वाली जो तौलीद है वो नबाताती अफजाइश कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर बाज़ पैदाइश के अंदर भी अगर हमें देखना है तो वहाँ पर देख सकते हैं। इसको बाज़ पैदाइश के अंदर भी तमाम मिसालें ले सकते हैं, स्टेम के जरिए, रूट के जरिए, लीफ के जरिए दोबारा फिर पैदा हो रही, वो बाज़ पैदाइश के भी थोड़ा मिलता जुलता है। तो आइए अब हम नबाताती अफजाइश के बाद आखिरी और गैर-सनफी तौलीद की किस्म को देखते हैं, वो है बजरा की तौलीद, स्पोरेंजिया, स्पोर फॉर्मेशन। या तो नबाताती अफजाइश के बाद जो आखिरी तौलीद है वो है बजरा की तश्कील, बजरा की तश्कील। ठीक है ना, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। देखो यहाँ पर बजरा की तश्कील ये कहाँ पर तुम्हें देखने में मिलता है, मिसाल लीजिए यहाँ बराह रास्त राइस, इसकी मिसाल हम लीजिए राइजोपस यानी एक किस्म का ये जानदार ही है राइजोपस। तो राइजोपस इसके अंदर मिसाल आती है, यहाँ पर क्या हो सकता है, एक मिसाल लीजिए ये ब्रेड है। ठीक है। तो ये ब्रेड के ऊपर कई दिनों से अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दाग बनता है ब्लैक, इसके अंदर वाइट पैचेस बनते हैं। फिर इसी पैचेस के ऊपर, जिसको हमें फंगस का बोलते हैं, फंगस बोलते हैं इसको, तो इसके ऊपर छोटे स्पोर बने रहते हैं। स्पोर वो हवा के अंदर एक एक करके, इसके अंदर जो मोटी परत रहती है स्पोर के तरफ, वो टूट कर हवा के अंदर इस तरह से बिखर जाते हैं, जाकर कहीं और अच्छी जगह पर जाकर फिर वो स्पोर बना लेते हैं, यानी तौलीद बना लेते हैं। तो फिर इसी तरह से फिर वहां से निकलते हैं, फिर अच्छी जगह पर जाकर फिर तौलीद कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं बजरा की तश्कील, यानी बजरा की तौलीद। यहाँ स्पोर यानी मुहीन सुराख के जरिए कुछ मुहीन ज़र्रात निकलते हैं, इसको हम कहते हैं स्पोर्स। बहुत सारे चढ़ के दरख्त वगैरह हैं, बहुत सारे दरख्तों के अंदर भी स्पोर्स निकलते हैं बारीक बारीक उनके कुछ आखिरी हिस्से से, उसको भी स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया यानी ये आमतौर पर कौन्स के दरख्त में, कौन्स
जिम्नोस्पर्म के जो नबातात हैं, जो नाइन्थ हमने पढ़ रखा है जिम्नोस्पर्म, उन नबातात के अंदर भी कुछ स्पोर्स निकलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी बारीक जो सुराखें हैं वो यहाँ से मुइन ज़रात हैं, तो यहाँ से इस तरह से जो शक्ल है इसकी ये निकल कर हवा के अंदर शामिल होते हैं और कहीं पर जाकर वो तौलीद कर लेते हैं। तो इसकी बेहतरीन मिसाल बजरा की तशकील में याद रखो राइजोपस, और एक इसके अंदर मिसाल याद रखो हाइफे, इंग्लिश में लिखो इस तरह से हाइफे, ठीक है। ये जैसा राइजोपस है वैसा भी हाइफे भी एक जानदार है। तो अब तक जो हमने यहाँ पर पढ़े ये तमाम क्या है, गैर सनफी तौलीद हैं, गैर सनफी तौलीद हैं। देखो इसके अंदर क्या है, रिकॉर्ड फिशन, सबसे पहले फिशन है, पारगी है, बास पैदाइश है, कलियाना है, नवाजाती अफजाइश, बजरा तशकील है, ठीक है। फिशन के अंदर दो किस्म, बाइनरी फिशन, मल्टी फिशन। बास पैदाइश पारगी के अंदर कोई अक़साम नहीं है, यहाँ पर याद रखो। बाइनरी फिशन के अंदर मिसाल याद रखो अमीबा, ठीक है, और लिश्नामिया। मल्टी फिशन के अंदर याद रखो नाम प्लाज्मोडियम, ठीक है, और यहाँ पर अगर प्लानेरिया याद रखें तो कोई बात नहीं। इसके बाद आइए पारगी के अंदर, तो पारगी के अमल में यहाँ पर फ्रैगमेंट होता है, टुकड़े टुकड़े होता है, तो यहाँ पर भी अगर हम मिसाल लेते हैं तो प्लानेरिया की ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, बास पैदाइश के अंदर देखो, पारगी के अंदर देखो, इसके अंदर मिसाल लीजिए स्पाइरोगेरा, बास पैदाइश के अंदर देखो प्लानेरिया, यहाँ पर मिसाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद कलियाना के अंदर हाइड्रा मिसाल लीजिए। इसके बाद नबातात अफजाइश के अंदर तो यहाँ पर दो किस्म के और तरीके यहाँ पर आते हैं इसके अंदर, एक जो है ग्राफ्टिंग, दूसरा जो है लेयरिंग, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मिसाल है गुलाब की कलियाँ, गुलाब के फूल हैं, नबातात अफजाइश में गन्ने के पौधे वगैरह हैं। और इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर बजरा की तशकील, इसके अंदर मिसाल आते हैं राइजोपस और हाइफाई, ये दोनों पौधे हैं। इस किस्म के तमाम ये जो किस्में हैं वो गैर सनफी तौलीद के किस्में हैं। तो अब हम पढ़ाई करेंगे जिनसी तौलीद सनफी या सनफी तौलीद, ठीक है।